Hello one and all, welcome or welcome back. So today we are going to learn how to write aphorisms, as well as we will see what books to refer, and due to that books you will be getting very easy for understanding the aphorisms as well as the footnotes, and for remembering the aphorism numbers too, and how to study that also we are going to see. Okay, so watch it till end. Fine. So just we have to understand the aphorism and then we have to write, but firstly we'll see the format for it. Okay, so I'll be writing here and showing you फॉर्मेट मतलब क्या होता है कि है ना, फर्स्ट एक जो इंट्रोडक्शन पार्ट जो रहता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले तो है ना, स्टार्ट कैसे करें अफोरिज्म लिखना एग्जाम में, हम लोग है ना कैसे भी हैपजार्डली स्टार्ट करते हैं, बट नो, वी हैव सम काइंड ऑफ सिस्टम और सम काइंड ऑफ paragraph or some kind of way to follow that particular way. Okay, so that particular way I'll be telling you. So you can see here, if the question has been asked, like write aphorism number 26 or give the explanation of therapeutic law of nature or something, secondary action of a medicine or secondary action of a drug, if this kind of question has been asked like materia pickens or something like that, then how to start this aphorism? So for example, therapeutic law of nature will take. So here question has been asked, therapeutic law of nature, so we will start answer by writing therapeutic law of nature is given in aphorism number 26 by Dr. Samuel Hahnemann in his 6th edition of Organon of Medicine, and he explains about therapeutic law of nature, that is a dynamic influence, or it is a dynamic influence, only a dynamic influence in aphorism number 26, and you will give comma over here and you will start like that. He explains that, and everything explanation you have to write. Okay, if you are very well versed with the aphorisms, like you have completely learned or mug up the aphorism, then you can write here aphorisms. Okay, but the aphorism should be very perfect. That is compulsory to write aphorisms, but if sometimes in such aphorisms like materia pickens, it is given in the footnote, so there is no aphorism to write. So for that type of questions you will be using this particular format, and then you will be writing directly the body of answer. Okay, here, from here you will start after this paragraph, but this paragraph will be common for each and every question. And then if suppose aphorism number 1 is asked, aphorism number 2 is asked, or any 26, 30th, 36 or many more, so you will be writing aphorism completely. Okay, complete aphorism over here, and then you will start the body, and the body means the explanation. You will start explanation of that particular aphorism. ठीक है, so ये जो है ना aphorisms के यहाँ पे आपको है ना विदाउट क्वामा भी मिस करते हुए aphorism लिखना है, कुछ भी मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी कुछ मिस नहीं करना है, बिकॉज अगर आप मिस करोगे तो है ना आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, बिकॉज इंट्रोडक्शन के लिए मार्क्स रहता है, देन अफोरिज्म्स के लिए मार्क्स रहते हैं, फिर बॉडी ऑफ आंसर के लिए मार्क्स रहते हैं, एंड अवॉइड राइटिंग पैराग्राफ. पैराग्राफ में बिल्कुल भी नहीं लिखना है. अगर आप पैराग्राफ में लिखोगे देन एग्जामिनर विल नॉट रीड योर आंसर. एग्जामिनर आपको मार्क्स ही नहीं देगा, वो है ना सोचेगा कि हाँ बाबा इसने कुछ तो लिखा है, चलो छोड़ दो. अगर आप ऐसे ना अफोरिज्म्स लिखते हो पॉइंट वाइज, तो आपको अच्छा मार्क्स मिलने का चांसेस है. एंड वन मोर थिंग आई विल शो यू बाय हाईलाइटिंग द थिंग, लाइक ये जो है ना, मैंने यहाँ पे बोला था थेरेपेटिक लॉ ऑफ नेचर आएगा और फिर यहाँ पे अफोरिज्म नंबर आएगा, तो अफोरिज्म नंबर को अंडरलाइन करना है, सिंगल अंडरलाइन करना है. ठीक है, फिर यहाँ पे क्या दिया है उसमें, मतलब अफोरिज्म अगर 1 पूछा है तो क्या 1 में दिया है, फिजिशियंस मिशन दिया है, तो वो भी आपको मेंशन करना है, उसको अंडरलाइन करना है. अफोरिज्म्स को अंडरलाइन करना ही करना है. और जो अफोरिज्म आपने यहाँ पे लिखा है ना, एज इट इज़ अफोरिज्म फ्रॉम 6th एडिशन यू हैव टू राइट. सो वो जो एज इट इज़ अफोरिज्म है ना, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना है और वो सेपरेटली लिखना है. फिर नीचे के लाइन से आपका पूरा आंसर स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये सब कुछ था कि आप कैसे अफोरिज्म्स एग्जाम में लिख सकते हो. तो दिस वॉज द फॉर्मेट और द ग्लेंस विच हाउ to write aphorism in exam. Now, which books to refer?
मतलब बहुत सारे लोगों को है ना बुक्स का कुछ पता नहीं होता है, रेफरेंस बुक क्या होते हैं क्या नहीं होते, तो मैं आपको बता दूँ। पहले तो 6th एडिशन खरीद लो, ठीक है, 6th एडिशन। फिर आता है नागेंद्र बाबू, ये जो है वो कंप्रेहेंसिव स्टडी ऑफ ऑर्गेनॉन बाय नागेंद्र बाबू है। फिर अशोक दास का, ये सब डाइजेस्ट जैसे है, मतलब रेफरेंस बुक भी नहीं कह सकते, डाइजेस्ट जैसे है। और फिर केंट लेक्चर, ये सब कुछ जो है ना, ये सारे बुक्स आपको रेफर करने फॉर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, बट मेन आपको इसी बुक पे कंसंट्रेट करना है, दैट इज 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन। फिर आता है BK सरकार, ठीक है। BK सरकार के बाद ना आप लोग कर सकते हो, मतलब फिलोसॉफी के लिए कर सकते हो असरकर। ये मैंने असरकर लास्ट में क्यों लिखा है, बिकॉज ना ये मैं नहीं आपको सजेस्ट करूँगी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में, अगर आप इससे ज़्यादा स्टडी करोगे ना तो आप एग्ज़ाम के लिए कुछ भी याद नहीं रहेगा, कुछ भी आपको है ना आइडिया नहीं आएगा अफोरिज्म्स का। सो डोंट यूज़ दिस असरकर, go for Nagendra Babu. I will suggest for Nagendra Babu and the Keynes lecture and the Das one. Okay, for this four I'll suggest, because this four I have personally used and I have got very nice experience, because बहुत अच्छे से है ना आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाती है अफोरिज्म्स की। सो यूज दिस 4 बुक्स, ठीक है। और अभी पढ़ना कैसे, तो है ना पहले तो देखो अफोरिज्म आपको है ना, ये जो है ना 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन, ये इससे आपको पढ़ना है। फिर आप है ना पढ़ते पढ़ते ये देखो, यहाँ पे आपको है ना वर्ड्स का मीनिंग लिखना है, अंडरस्टैंड करके गूगल सर्च करके आप लोग है ना उसके मीनिंग लिख सकते हो, या फिर ऐसा कुछ पेज बना के उसके ना मीनिंग्स लिख सकते हो, या फिर कुछ फ्लो टेबल फ्लो चार्ट बना सकते हो, रेफरेंस बुक्स से लेके कुछ वर्ड्स आप कर सकते हो, ऐसे आप कर सकते हो स्टडीज़, ठीक है। फिर ये जो आता है ना फुटनोट, इसके भी आपको है ना नोट्स निकालने होते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि है ना अगर आपको कुछ है ना रेफरेंस बुक मिलते हैं तो वो ले लो, इससे अफोरिज्म्स पढ़ो, रेफरेंस बुक्स को रेफर करो, एंड देन यू विल टेक आउट योर पर्सनल नोट्स, एंड दैट टाइप ऑफ स्टडी विल लीड यू, और दैट टाइप ऑफ स्टडी विल गिव यू good marks in examination. So this is what all about for today, and yeah, so how to write aphorisms तो हो गया, ये सिर्फ आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, and you are ready to go for the exam. Thank you.